11th class students, I had told you in previous video properties of union, properties of intersection, properties of complementary set. In this video I am going to tell you properties of पावर सेट, घात समुच्चय के गुण. फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी गिवन सेट A and B, P A intersection B equal P A intersection P B. This is first property. P A intersection B equal P A intersection P B. I am proving this property. You see and understand. How proving this? We will prove A intersection B, P A intersection B, P A intersection B, subset P A intersection P B and P A intersection P B subset P A intersection B. By the definition of equality of any two set. So let set S is the element of P A intersection B. First I will prove P A intersection B subset P A intersection P B, and after this we will prove P A intersection P B subset P A intersection B for P A intersection B equal P A intersection P B प्रूव करने के लिए is the element of P A intersection B. So we may write here S belongs to P A intersection B. So certainly S is the subset of A intersection B. S is the subset of A intersection B. Here suppose S belongs to PA intersection B. Then S
subset A intersection B. Next we may write here as subset A and as subset B. S सेट A का सबसेट है एंड S सेट B का सबसेट है. सो S belongs to PA, S belongs to PA and S also belongs to PB. So we may write here S belongs to PA intersection PB. PA intersection PB. हमने माना था S belongs to PA intersection B और इससे फाइंड किए हैं S belongs to PA intersection PB. So we may write here, suppose this is first relation and this is second relation. By the definition of subset from first and second, first and second, we may write here PA intersection B subset PA intersection PB. This is proof, has proof. बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन PA इंटरसेक्शन B इक्वल PA इंटरसेक्शन PB, इसे प्रूव करने के लिए हमने मान लिया है फॉर प्रूविंग दिस we will prove PA इंटरसेक्शन B सबसेट PA इंटरसेक्शन PB. ये इक्वल दिखाने के लिए, इक्वल प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा PA intersection B subset PA intersection PB and PA intersection PB subset PA intersection B by the definition of equality of any given two set. Let S is the element of PA intersection B. हमने S PA intersection B का एलिमेंट लिया, सो लिख सकते हैं S सबसेट A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A इंटरसेक्शन B के पावर सेट में सभी सबसेट आएंगे A इंटरसेक्शन B के. सो इफ S belongs to PA intersection B, then S subset A intersection B, and here we may write this S subset of A and S subset of B. This we write definition of intersection of two set. So here we may write S belongs to PA. S A का सबसेट है और S B का सबसेट है, तो निश्चित रूप से चूंकि PA में A के सभी सबसेट आएंगे, so S belongs to PA and S belongs to PB. Here we may write S belongs to PA intersection PB. We may write here also definition of intersection of two set. From first and second we may write PA intersection B subset PA intersection PB. Next, see here, if S belongs to PA intersection PB, then we may write S belongs to PA
PA and S belongs to PB, and here S subset A and S subset B, here S subset A minus B, and find S belongs to PA intersection B. So make sign रिवर्सिबल, इस साइड को भी साइन लगा दिए हैं। यदि ये हम S इस सेट में मानते हैं तो इस सेट में प्राप्त करते हैं, और इस सेट में मानते हैं तो इस सेट में प्राप्त करते हैं। सो PA इंटरसेक्शन B सबसेट PA इंटरसेक्शन PB एंड PA इंटरसेक्शन PB also subset PA intersection B. So B may write PA intersection B equal PA intersection PB. This property proved. सबसे पहले हमने LHS को RHS का सबसेट प्रूव किया, इसके बाद RHS को LHS का सबसेट प्रूव किया। यहां से ऐसे प्रूव करेंगे, S को RHS में सपोज करते हैं, S को PA इंटरसेक्शन PB में मानते हैं, और इससे हम ये पाते हैं, और इससे ये लिख सकते हैं, और इससे ये लिख सकते हैं, और इससे S बिलोंग्स टू PA इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि PA इंटरसेक्शन B में है तो उससे हमें PA इंटरसेक्शन PB में भी मिलता है एलिमेंट S, और यदि PA इंटरसेक्शन PB में है तो हमें PA इंटरसेक्शन B में भी मिलता है। सो हियर by the definition of equality of two set, we may write here PA intersection B equal PA intersection PB. This is the first property. And second, PA union PB proper subset of PA union B. बच्चों ये प्रॉपर्टी आप सभी को लर्न होनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार इसका यूज भी करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी PA यूनियन PB, PA यूनियन PB proper subset of PA union B, PA union B. C. Prove. Let S belongs to PA union PB. So if S belongs to PA union PB, then S belongs to PA या S belongs to PB. Then we may write here S belongs to PA or S belongs to PB. So we may write here S subset of A or S subset of B. Here we may write S subset of A union B. So S belongs to PA union B.
So we may write here S belongs to PA union B. So from first and second we may write here PA union PB. From first and second we get here PA union PB, proper subset of PA union B. तो बच्चों ये दो प्रॉपर्टीज हैं पावर सेट की जिसे मैं प्रूव किया हूँ। सेम ऐसे ही अपनी फेयर कॉपी में प्रूव करो और एक्सरसाइज करो। नेक्स्ट you see exercise 1.5. Here given question number 6. Question number 6. मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। See question number 6. यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट गिवन है और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय है। अब उसमें चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, कैसे भी त्रिभुज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 exercise 1.5. Here given U equal सभी त्रिभुजों का समुच्चय। समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। सो U इक्वल सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। A के जो एलिमेंट हैं वो ऐसे त्रिभुज हैं जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से डिफर हो, मीन्स 60 अंश ना हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि A में वो सभी त्रिभुज आएंगे जो समबाहु नहीं है। A के एलिमेंट उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जो समबाहु नहीं है। यदि समबाहु होंगे तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगी और यहाँ दिया हुआ है A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो, मीन 60 डिग्री ना हो। इसलिए A इक्वल उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु नहीं। So finding here A dash, तो A dash क्या है? A dash इक्वल U माइनस A
हियर यू सभी त्रिभुजों का समुच्चय है और इसमें से ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु नहीं है। कहने का अर्थ हुआ u माइनस ए में, u में तो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु सभी प्रकार के त्रिभुज हैं और इसमें से हम ऐसे त्रिभुजों को माइनस कर दें जो समबाहु नहीं है, तो u में जो एलिमेंट होंगे वो ऐसे त्रिभुज होंगे जो समबाहु हैं। ए डैश इक्वल ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु है। This is answer. Next, question number 7. निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। A यूनियन A डैश, A यूनियन A डैश। क्वेश्चन नंबर 7। इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए हम वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। This is universal set U and this is any set A. A यूनियन A डैश फाइंड करना है। A यूनियन A डैश फर्स्ट we represent A dash will be this lining part. A dash you are seeing here A dash union A or A union A dash, A union A dash equal U. This is lining part A dash union A को भी शामिल कर दें तो हमें U मिलेगा। A डैश A यूनियन A डैश इक्वल U प्राप्त होगा। सो यहाँ फिल कर सकते हैं A यूनियन A डैश इक्वल U। सिमिलरली सेकंड पार्ट फाई डैश इंटरसेक्शन A, फाई डैश इंटरसेक्शन A मीन्स फाई डैश U माइनस फाई will be U minus phi is equal to U and U intersection A equal A। यहाँ A फिल करेंगे। A intersection A dash, this is A and A dash lining part A dash, so A intersection A dash equal phi, U dash intersection A, U dash means U minus U will be phi and phi intersection A will be phi. So in fourth part you will fill phi. Next, यदि A और B क्वेश्चन नंबर 3 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है A और B दो समुच्चय हों तो A इंटरसेक्शन B डैश किसके इक्वल होगा? A इंटरसेक्शन B डैश। क्वेश्चन नंबर 3 A intersection B dash, A intersection B dash। ऐसे ही वेन डायग्राम ड्रा करके आसानी से समझ सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश किसके इक्वल होगा। ये वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। A and B
this is set B. A intersection B dash, this is A intersection B. ये लाइनिंग पार्ट A इंटरसेक्शन B होगा और A इंटरसेक्शन B डैश जितना खाली पार्ट है वो मिलेगा। A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल A का A इंटरसेक्शन B डैश से इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B डैश का इंटरसेक्शन हमें ये पार्ट मिलेगा जो मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये A में से B का जो पार्ट है इसे आउट कर दिया गया है, मीन्स A में से B के भाग को निकाल दिया गया है, तो ये A माइनस B होगा। A इंटरसेक्शन B डैश ये इक्वल A माइनस B। बच्चों इस तरह से वेन डायग्राम आरेखित करके इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न से जिसमें ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, प्रूव करना है A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल 5। क्वेश्चन नंबर 8, A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल 5। बच्चों वेन डायग्राम भी ड्रा करके आसानी से ये देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन A डैश 5 के इक्वल होगा, लेकिन हम यहाँ डिफिनीशन से इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले A इंटरसेक्शन A डैश को 5 का सबसेट दिखाएंगे और 5 को A इंटरसेक्शन A डैश का सबसेट दिखाएंगे। You see proof of this question, A intersection A dash equal 5. Let X belongs to A intersection A dash, then we may write here X belongs to A and X belongs to A dash. Definition लर्न होगी तभी ये सब स्टेप लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है प्रीवियस वीडियोज वॉच करें और उन्हें अच्छी प्रकार से समझें, तब इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से प्रूव कर पाएंगे। Here we may write X belongs to A and if X belongs to A dash, then certainly X is not belongs to A। मैं ये ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि यदि X A डैश का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से A का एलिमेंट नहीं होगा। सो हियर वी गेट X belongs to 5। यहाँ X A का अवयव है मिलता है और X A का अवयव नहीं है। इसका अर्थ हुआ X किसी भी सेट का अवयव नहीं है, मीन्स वो नल सेट का एलिमेंट है। X belongs to 5। और नेक्स्ट you see here, if X belongs to 5, then we get X belongs to A and X is not belongs to A। We may write this X belongs to 5 as X belongs to A and X is not belongs to A, and then
write x belongs to A and x belongs to A dash, and next x belongs to A intersection A dash. So from first and second we find here A intersection A dash subset phi, and phi is also subset of A intersection A dash. So we may write from first and second relation A intersection A dash equal phi. This is proved. Question number 9. B minus A proper subset of A dash. B minus A. B minus A proper subset of A dash. Let x belongs to B minus A, then we may write here definition of difference of two set. We may write x belongs to B and x is not belongs to A. So we may write here x belongs to B and x belongs to A dash. x A में नहीं है तो A के कॉम्प्लीमेंट्री सेट A डैश में x अवश्य होगा। ये थ्योरम मैं प्रूव कर चुका हूँ। नेक्स्ट we may write here x belongs to A dash. x B में तो है लेकिन x A डैश में भी है, सो निश्चित रूप से B माइनस A के सभी अवयव तो A डैश में हैं, दिस इज A डैश। लेकिन ये संभव है यहाँ कि A डैश के कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो B माइनस A में ना हो। सो B माइनस A सबसेट proper subset of A dash by the definition of subset। यहाँ हमने x B माइनस A में सपोज किया और यहाँ फाइंड किया x belongs to A dash, so we may write here B minus A proper subset of A dash। Next, given A minus B, question number 10। A माइनस बी इक्वल प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल प्रूव करना है B डैश माइनस A डैश, B डैश माइनस A डैश। सबसे पहले मैं A माइनस बी इक्वल A इंटरसेक्शन B डैश प्रूव करूंगा और इसके लिए A माइनस बी सबसेट A इंटरसेक्शन B डैश प्रूव करना होगा और A इंटरसेक्शन B डैश को सबसेट A माइनस B प्रूव करना होगा। A माइनस बी इक्वल A इंटरसेक्शन B डैश, इसे प्रूव करने के लिए x A माइनस बी में सपोज करते हैं let x belongs to A minus b, then x belongs to A and x is not belongs to B by the property of difference of two sets। दो समुच्चयों का जो डिफरेंस है उसकी डिफिनीशन से हम ये लिख सकते हैं let x belongs to A minus b, then
x belongs to A and x is not belongs to B. Here we may write x belongs to A and x belongs to B dash, or if x belongs to A and x belongs to B dash, we may write this by the definition of intersection of two sets. X belongs to A intersection B dash. So here हमने सपोज किया था x a माइनस बी में है और इससे हमें x a इंटरसेक्शन b डैश में भी प्राप्त हुआ। सो लिख सकते हैं a माइनस बी सबसेट A इंटरसेक्शन B डैश। और इसी प्रकार से यदि x A इंटरसेक्शन B डैश में है तो x A में और x B डैश में है लिख सकते हैं, और इससे ये स्टेप फाइंड कर सकते हैं और इससे ये स्टेप भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए एरो दोनों साइड में लगाते हैं और यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी फाइंड हुआ a इंटरसेक्शन b डैश का सबसेट है और a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट a माइनस b है। सो b में राइट a माइनस b इक्वल a इंटरसेक्शन b डैश। Similarly, you can prove this a minus b equal b dash minus a dash। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, किन्हीं दो समुच्चयों a और b के लिए प्रूव करना है। कोई भी दो सेट सपोज कर लो a और b, उनके लिए a डैश माइनस b डैश इक्वल b माइनस c प्रूव करना है। यहाँ a डैश फाइंड करें, b डैश फाइंड करें और दोनों का डिफरेंस फाइंड करें और b a का डिफरेंस फाइंड करें। देखेंगे दोनों सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। इसी प्रकार a और b ऐसे सेट सपोज करें कि a प्रॉपर सबसेट b हो और तब b डैश प्रॉपर सबसेट a डैश प्रूव करना होगा। कोई भी दो सेट ले सकते हैं। एक सेट a इक्वल उसमें एलिमेंट 1 2 ले लो और एक दूसरा सेट b उसमें एलिमेंट 1 2 3 ले लो। हम इस प्रकार दो सेट लिए हुए हैं कि ये प्रॉपर सबसेट ऑफ b है और ये दोनों सेट के लिए आसानी से फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो गिवन है बुक में इन्हें प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट I will tell you practical problems based on union and intersection of sets। बच्चों कुछ व्यवहारिक प्रश्न समुच्चयों से रिलेटेड दिए जाते हैं और उन्हें हम समुच्चय की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स समुच्चय जैसा उन्हें सपोज करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दो समुच्चयों A और B के लिए कुछ रूल यहाँ प्राप्त करते हैं। सपोज करते हैं ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज रेक्टेंगल, सो दिस रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट एंड ए और बी दो ऐसे सेट हैं कि ए और बी के एलिमेंट अलग अलग हैं। मीन्स ए और बी डिसजॉइंट सेट है। तब ए और बी में कुल एलिमेंट की संख्या ए और बी में कुल एलिमेंट की संख्या मीन्स ए और बी को मिलाकर टोटल एलिमेंट की संख्या
मीन्स ए यूनियन बी में एलिमेंट की संख्या n, ए यूनियन बी इक्वल Na प्लस Nb। ये रिजल्ट वेन डायग्राम से आसानी से प्रूफ होता है। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी दोनों को मिलाकर टोटल एलिमेंट की संख्या नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल Na प्लस Nb। चूंकि यहाँ ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। Here A और B टू गिवन सेट हैं, इस प्रकार हैं कि A और B डिसजॉइंट सेट नहीं है। मीन्स A के कुछ एलिमेंट B में भी है और B के कुछ एलिमेंट A में भी है। ये A इंटरसेक्शन B हुआ। मीन्स इस पार्ट में जितने एलिमेंट हैं वो A में भी हैं और B में भी हैं। इस स्थिति में जबकि A और B डिसजॉइंट सेट नहीं है, तब A यूनियन B में मीन्स A और B को टोटल मिला करके एलिमेंट की संख्या, A में एलिमेंट की संख्या Na, B में एलिमेंट की संख्या Nb। लेकिन ये पार्ट A में भी आया है और B में भी आया है, तो इसे अब यहाँ माइनस करना होगा Na इंटरसेक्शन B। तो बच्चों ये रिजल्ट दो ऐसे सेट A और B के लिए है जबकि वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। Na यूनियन B इक्वल Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। और इस रिजल्ट को आसानी से वेन डायग्राम को देखकर क्लियर कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉपर्टी थ्री सेट गिवन है A B C, A B C, और तब A B C में टोटल एलिमेंट की संख्या मीन्स दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी एंड A यूनियन B यूनियन C इक्वल Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Nb इंटरसेक्शन C माइनस Nc इंटरसेक्शन A प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये दो सेट जबकि डिसजॉइंट सेट हैं, तब उन दोनों सेट में टोटल एलिमेंट की संख्या में से यूनियन B में अवयवों की संख्या इक्वल होती है A में एलिमेंट की संख्या प्लस B में एलिमेंट की संख्या। और ये जनरल फॉर्म है इस रिजल्ट का जबकि A और B डिसजॉइंट सेट नहीं है। मीन्स ऐसे सेट हैं कि उनमें कुछ एलिमेंट एक दूसरे में कॉमन हैं। इस स्थिति में Na यूनियन B इक्वल Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B होगा। और ABC तीन सेट दिए हुए हैं जो डिसजॉइंट सेट नहीं हैं, तब इन तीनों सेट में अवयवों की कुल संख्या टोटल A B C को मिला करके एलिमेंट की संख्या इक्वल होगी Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Nb इंटरसेक्शन C माइनस Nc इंटरसेक्शन A प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C।
और ये तो सभी प्रॉपर्टी वेन डायग्राम ड्रा करके आसानी से प्रूव कर सकते हैं और इन्हें मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, बुक में प्रूव किया हुआ है। इसे सेम इसी प्रकार से प्रूव करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। इस थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, थर्ड रिजल्ट को प्रूव करने के लिए फर्स्ट रिजल्ट का यूज करना होगा। इसका यूज किया गया है, इसे इसी प्रकार प्रूव करेंगे। नेक्स्ट सी एक्सरसाइज 1.6। यहाँ कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन्हें सेट के द्वारा सॉल्व करना है। मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं एक्सरसाइज 1.6 का। देखो, और इसी प्रकार एक्सरसाइज 1.6 से और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। हियर गिवन x और y दो ऐसे सेट हैं कि x यूनियन u में 18 एलिमेंट है। सो वी may write here n x union y equal 18। x और y दो ऐसे सेट दिए गए हैं कि x यूनियन y में 18 एलिमेंट हैं, मीन्स n x यूनियन y equal 18 गिवन है। x में 8, n x इक्वल 8 और y में 15 एलिमेंट हैं एंड y इक्वल 15। और तब x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, यहाँ n x इंटरसेक्शन y की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। You see solution. Here given n x union y equal 18, n x equal 8, and y equal 15 and n x intersection y equal find करना है। Since we know that x union y, अभी हमने ये रिजल्ट प्रूव किया वेन डायग्राम खींच करके। n x plus ny minus nx intersection y. Put all given values here. Value of nx union y 18, nx 8, ny 15 minus nx intersection y. अब यहाँ nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू सिंप्लीफाई करके इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। nx इंटरसेक्शन y इक्वल 15 8 23 minus 18 equal 5. So we get here nx intersection y equal 5. This is answer. Next, see question number 3. Here given 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 400 व्यक्तियों का एक ग्रुप है। यहाँ 250 हिंदी और 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी
और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी। प्रश्न में गिवन है 400 व्यक्तियों का ग्रुप है, मीन्स 400 जो व्यक्तियों का ग्रुप है उसमें 250 हिंदी और 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। अब 250 जो हिंदी बोलते हैं इसमें ऐसे भी कुछ होंगे जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, और जो 200 इंग्लिश बोल सकते हैं इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो हिंदी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ये फाइंड करना है कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे ये फाइंड करना है। हियर गिवन Na इक्वल 250, हिंदी बोलने वालों का सेट हमने माना है A, तो A में एलिमेंट की टोटल संख्या 250 गिवन है, सो वी में राइट हियर Na इक्वल 250 एंड B इंग्लिश बोलने वालों की टोटल संख्या गिवन है 200, और A यूनियन B, A और B दोनों को मिला करके हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की कुल संख्या Na यूनियन B इक्वल 400। यहाँ ये फाइंड करना है कितने व्यक्ति ऐसे हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या फाइंड करनी है एन ए इंटरसेक्शन बी। सिंस एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी minus an A intersection B. Put given value here. Na union B 400 equal Na 250 plus NB 200 minus NA intersection B. Here NA intersection B equal 250 450 minus 400. So we get here NA intersection B equal 50. So we may write here हिंदी व अंग्रेजी
दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या इक्वल Na इंटरसेक्शन B होगी और Na इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 50। सो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 है। दिस इज आंसर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।